Today, in the subject of the human resource management, OEC 3, we will discuss about the unit 3rd. The syllabus of the unit 3rd is the human resource development, training, training process, training need analysis, training methods and technique, designing training programs, delivery methodology, training evaluation, capacity building, career planning and development, potential appraisal, and succession planning. And in this, we are going for the training evaluation, which is given there, and the evaluation criteria are the we have to be determined here, and here it is given. Evaluation of a training effectiveness is the process of obtaining information on the effects of training program and assessing the value of the training in the light of that information. Evaluation involves controlling and correcting the training program. जो इवोल्यूशन होता है, इवोल्यूशन क्राइटेरिया में इवोल्यूशन ये किया जाता है कि ट्रेनिंग प्रोग्राम जो दिया गया वो कितना इफेक्टिव रहा, ट्रेनिंग प्रोग्राम में क्या क्या शॉर्टकम्स हैं, क्या क्या कमियां हैं, व्हाट आर द shortcomings are there, and they are to be corrected in the training program. If the training program is to be done, then the corrected version of the training program is to be done. The basis of evaluation and mode of determined when the training program is designed according to Hamblin, training effectiveness can be measured in terms of the following criteria. The training effectiveness, either the training is effectiveness or not, this can be measured by the following criteria. Number 1, reactions. Number 2, learning. Number 3, behavior. Number 4, results. These are the 4 criteria are there by which the training can be evaluation. These are the criteria. The reactions. A training program can be evaluated in terms of the training's reaction to the objectives, contents, methods of training. जो ट्रेनर है, ट्रेनी है, वो कंटेंट्स के बारे में बताएगा. He will say, tell about the contents of the training. He will tell about the methods of the training. He will tell about the objectives of the training. He will tell about the goals of the training, how the training is done. So reaction will be from the trainees that what the contents are given. Then the trainee will say that the training program is worthwhile and training can be considered effective. Right? Training, if the trainee agrees with the training program that the contents, methods of the training, objective of the training is the effective, then it is found that the training is effectiveness. Number 2 is the learning. The extent to which the trainees have learned the desired knowledge and skills during the training period is a useful basis of evaluating training effectiveness. How much the trainee has learned from the trainer, how the level of the knowledge have been changed, desired level of knowledge is changed, how the desired level of the skills have been achieved during the training period is the learning. This is the learning process, and by which the effectiveness of the training program can be judged. And number 3 is the behavior. Involvement in the job behavior of trainee reflects the manner and extent to which the learning has to be applied to the job. Job behavior. After the training, before the training, how the job behavior has changed. If the job behavior of the trainee is changed after the training, improvement in the job behavior, it reflects the effectiveness of the training that the applied on the job. That's about the job behavior. And number 4 is the result. Ultimate result in terms of the productive improvement, quality improvement, cost reduction, accident reduction, reduction in labor turnover, and absenteeism are the best criteria for evaluating the training effectiveness. ट्रेनिंग का इफेक्टिव है कि नहीं है, ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस, that can be checked through the productive improvement. If the productivity get improved or not, how much level of the change in the productivity level is to be done, what improvement in the quality is there.
quality improvement is done or not. If the quality improvement is done, productivity improvement is done, then the training is driven successful. If the cost reduction in the item production is done, then the training is effective. If the accident reduction is done, then it will be helpful. Reduction in the labor turnover, then it will be helpful. If the absenteeism are the best criteria for evaluating training effectiveness. Absenteeism जो है, absenteeism हो रहा है नहीं हो रहा है, these are the best criteria for evaluating the training effectiveness. Good afternoon, sir. हाँ, अटेंडेंस आपको लग गया, मैं आपको लगा देता हूँ, कौन कौन है यहाँ पे बता देता हूँ, लगा देता हूँ. ठीक है सर. Five participants are there. सर आज बच्चे कम हैं. हाँ, क्यों कम है? सर बच्चों के एग्जाम चलेंगे ना अब. अच्छा, बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं. हाँ जी, हाँ जी. तो आज एग्जाम है क्या? नहीं सर, बच्चे तैयारी कर रहे हैं ना सर. अच्छा अच्छा. आज भी बच्चों का एग्जाम है सर. आज भी बच्चे पेपर देने गए हैं. शुभम भारद्वाज का आज पेपर है और भी बच्चों का पेपर होगा. अच्छा, तो फिर उसका अटेंडेंस कैसे मार्क्स किया जाएगा? कुछ रिपोर्ट तो आया नहीं है कॉलेज से. हाँ, ये तो कॉलेज वालों की गलती है सर, वो तो देना चाहिए. वही तो. फिर अटेंडेंस तो कैसे करेंगे वो जो है? आप पूछ लेना सर, आप पूछ लेना. नहीं पूछूंगा क्या, वो तो कह रहे हैं कि आप अटेंडेंस लगा करके क्लास लेके अटेंडेंस लगाओ और उसको लॉक कर दो, यही कह रहा है वो तो. अच्छा. आप सुनील पांडे से बात कर लीजिएगा. सर मैं नहीं करता, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को अपना भी पढ़ना होता है. वही तब दिक्कत है. अब जो आया है उसका तो लग जाएगा. आज तो बच्चे ही नहीं है, 5 ही है. और हाँ वही है. दीपक से बोल दो सर, दीपक बोल देगा. हाँ बोल दीजिए, कोई भी जो है बोल दीजिए कि दीपक जी बोल दें, चाहे फ्रांसू जी बोल दें, पवन जी बोल दें, कोई भी जो है वो सुनील पांडे को इंटीमेट कर दें कि लड़के कम आ रहे, तो वो ठीक रहता है. दीपक जी 110, मिस्टर योगेश 167, फ्रांसू जी 112, पवन जी 127, रजनीश कुशवाहा जी 134, सर फैजान जी भी आ गए हैं. फैजान जी आ गए सर हैं. फैजान जी आ गए हैं. फैजान जी आ गए. मनोज सर बच्चों के री के पेपर चल रहे हैं, अटेंडेंस शॉर्ट हो जाएगी बच्चों की, अभी क्यों ले रहे हो क्लासेस? नहीं, क्लासेस तो कुछ इंस्ट्रक्शन तो है नहीं कॉलेज से, तो आप बात करो ना सुनील पांडे जी से, वो कुछ सॉल्यूशन निकालें. फैजान आप कहाँ घूम रहे हो? फैजान जी ये चाह रहे हैं कि अभी बच्चों के पेपर चल रहे हैं ना यार. फैजान जी आप कहाँ जा रहे हो? वीडियो ऑन करके रखो. हैं? अभी मैं रास्ते में हूँ यार, जामिया अंदर जा रहा हूँ. कहाँ जा रहे हो? जामिया कहाँ अंदर जा रहे हो आप? जामिया अंदर में एडमिशन लेने जा रहा हूँ. चल मुझे मतलब क्या कह रहा है? कहाँ मतलब क्यों जा रहा है ये बता. अरे वहाँ पे सिस्टर का एडमिशन हुआ है ना, कजन सिस्टर का, तो वहीं अच्छा अच्छा रोल नंबर वगैरह लेना, हॉस्टल वगैरह करवाना है. अच्छा अच्छा अच्छा. चल कर ले कर ले. मनोज सर आप समझते क्यों नहीं हो? समझ गया, नहीं समझ रहा. मैं तो समझ गया, तो मैं क्या करूंगा, हमारे पास कुछ इंस्ट्रक्शन तो है नहीं. आप सर बोलो, आप बोलो, बात करो आप कि बच्चे कमा रहे हैं, क्या करना है. ग्रुप में मैसेज करता हूँ. हाँ आप एक मीटर में कुछ आप बच्चों की अटेंडेंस शॉर्ट हो जाएगी ना सर. आप तो 6-7 बच्चों का मार्क करोगे, बाकी तो शॉर्ट हो जाएंगे ना बच्चों के. और फिर इनको लॉक भी करना होता है फैजान, मार्क करके. वही तो क्लास के बाद वो मार्क नहीं, लॉक नहीं करना, वो लॉक वही खुद ही कर देते हैं वो.
लॉक खुद ही कर देता है वो। सुनील पांडे जी खुद ही लॉक कर देता है वो, सारे के लॉक कर देता है वो। अच्छा अच्छा, ओके ओके। फैजान जी आप बात कर लो आज। हाँ आप बात कर लीजिए जो है कि लड़के को अटेंडेंस कम हो रहे हैं। है ना, बात कर लीजिए। कुंदन जी भी आ गए सर। कुंदन जी भी आ गए और उनका भी लगा दिया मैंने। तो जो जो आए हुए हैं मैं फिर से आपका नाम बता देता हूँ। पवन जी हैं 127, फ्रांसू जी हैं 112, फैजान जी हैं 111, योगेश जी है, कुंदन जी है 163, दीपक जी हैं 110 एंड योगेश जी 150 वो ज्वाइन कर रहे हैं। आप बात जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो फिर वो दिक्कत होगा वो। तो जो आपका जो ये 4 क्राइटेरिया है, ये 4 लेवल ये आपको दिखाए हुए हैं। इवोल्यूशन रिएक्शंस का दिखाया हुआ है, इवोल्यूशन लर्निंग का दिखाया हुआ है, इवोल्यूशन बिहेवियर का दिखाया हुआ है, इवोल्यूशन रिजल्ट का दिखाया हुआ है। तो इसमें आपको इवोल्यूशन रिएक्शन में डिड द ट्रेनीज लाइक द प्रोग्राम, द ट्रेनर्स द फैसिलिटी। ट्रेनी जो है प्रोग्राम को लाइक किया कि नहीं किया, ट्रेनर का जो फैसिलिटी है वो लाइक किया नहीं किया, ये उसमें आपको रिएक्शंस आता है। डिड यू थिंक द कोर्स हैज यूजफुल, कोर्स उसमें यूजफुल रहा कि नहीं रहा, क्या जो है क्या उसने पढ़ाया, क्या क्या ट्रेनिंग दिया, जॉब रिलेटेड था नहीं था, उस वो कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ नहीं हुआ, व्हाट इम्प्रूवमेंट्स कैन बी सजेस्ट, क्या इम्प्रूवमेंट और वो सजेस्ट कर सकता है। डिस्ट्रीब्यूट एनालाइज क्वेश्चनियर्स, क्वेश्चनियर इसका बनाइए, क्वेश्चन बना करके वो ट्रेनीज को दीजिए और ट्रेनीज को देने के बाद जो है उसका इवोल्यूशन कीजिए, है ना। तो क्वेश्चनियर बनाइए, सेट ऑफ द क्वेश्चनियर, फीडबैक फॉर्म होता है, फीडबैक फॉर्म बना करके डिस्ट्रीब्यूट कीजिए और उसको एनालाइज कीजिए, एनालाइज करके ये निकालिए कि वो सक्सेसफुल रहा कि नहीं रहा, जो ट्रेनिंग था वो आपको सक्सेसफुल रहा कि नहीं रहा। लेवल 2 में इवोल्यूएट लर्निंग to vast extent to do trainee have greater knowledge or skill after the training program than they did before। ट्रेनिंग करने के पहले और ट्रेनिंग करने के बाद में क्या नॉलेज में चेंज आया, इस व्हाट आर द चेंजेस इन द स्किल्स, that what effective change have been taken place, what extent the change have been taken place, this can be performed by the performance test, grade simulations and written test। क्या जो है चेंजेज आया इसके बारे में आपको लेवल 2 में है। लेवल 3 में है बिहेवियर, ऑल द ट्रेनी बिहेवियर डिफरेंटली ऑन द जॉब आफ्टर ट्रेनिंग। इफ ऑल द ट्रेनीज हु आर गिवन द ट्रेनिंग हैव द जॉब बिहेवियर डिफरेंट आफ्टर द ट्रेनिंग, are they using skills and knowledge they learned in the training, are they using skills and knowledge in the learned in the training। collect performance data from superior, peer, client and subordinate, है ना। how can you judge that the change in the behavior or not, so you can collect the data from superior, collect the data from the client, collect the data from subordinate, collect the data from peer। तो ये आपको बिहेवियर आपको आपको क्लियर आएगा। रिजल्ट्स, इवोल्यूट रिजल्ट्स, इज द ऑर्गेनाइजर और यूनिट बेटर बिकॉज ऑफ ट्रेनिंग, है ना। ऑर्गेनाइजेशन और यूनिट जो जहाँ पे काम कर रहा था, डिपार्टमेंट जहाँ कहाँ आपका ट्रेनिंग चल रहा था, वो उसका इवोल्यूशन ठीक हो रहा है नहीं हो रहा है, तो उसका एक्सीडेंट पे क्या फर्क पड़ा है, उसका क्वालिटी में क्या फर्क पड़ा है, व्हाट इज द चेंजेज इन द क्वालिटी, व्हाट इज द चेंजेज इन द प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी में क्या चेंज हुआ है, टर्नओवर में क्या चेंज हुआ है, मोरल में क्या चेंज हुआ है, कॉस्ट में क्या चेंज हुआ है, प्रॉफिट्स में क्या चेंज हुआ है। दीज आर द मेजर्स फॉर द रिजल्ट्स। So by changing the 4 levels of the measures, you can check whether the training become effective or not, effectiveness is become effective or not। ये सारे हैं। पहले आप क्वेश्चनियर रेडी कीजिए, उसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए क्वेश्चनियर को, फिर एनालाइज कीजिए, फिर आप उसका रिटर्न टेस्ट लीजिए, परफॉर्मेंस टेस्ट लीजिए, ग्रेडेड सिमुलेशन कीजिए, आपको लर्निंग का पता चल जाएगा। आप सुपीरियर से, पीयर से, क्लाइंट से, सबऑर्डिनेट से, यू टेक द डाटा
ऑफ द परफॉर्मेंस डाटा, उसका परफॉर्मेंस डाटा आप क्लियर कीजिए, है ना। तो एक्सीडेंट जो है पे क्या फर्क पड़ा, ये मेजर करना है, क्वालिटी पे क्या फर्क पड़ा उससे ये मेजर करना है, प्रोडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ा ये मेजर करना है, टर्नओवर पे क्या फर्क पड़ा वो मेजर करना है, मोरल पे क्या फर्क पड़ा वो मेजर करना है, कॉस्ट पे क्या फर्क पड़ा वो मेजर करना है, प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ा वो मेजर करना है। तो ये आपको 4 लेवल्स ऑफ द ट्रेनिंग है ना। तो ये फिगर आपको provides a great framework for evaluation of the terms and types and levels of the method. So it is not possible otherwise to comprehensive evaluation system due to the organizational constant, lack of clear training policy. जो कभी कभी ऑर्गेनाइजेशनल कांस्टेंट होते हैं उसमें आपको ट्रेनिंग जो है आपको दी आर द कांस्टेंट इवोल्यूशन सिस्टम क्लियर नहीं हो पाता है। जो ट्रेनिंग पॉलिसी है वो आपको ठीक नहीं है। inadequate infrastructures are there, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आपको ठीक नहीं है। अनविलिंगनेस ऑफ द मैनेजमेंट में जो मैनेजमेंट है उसका विलिंगनेस नहीं है टू चेंज द ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी, है ना। दी आर द कॉन्स्टेंट्स, ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्स्टेंट्स आर देयर। मैनेजमेंट का ह्यूमन पॉलिसी ही नहीं है, रिसोर्स पॉलिसी ही नहीं है उसका कि चेंज करना है। परफॉर्मेंस अप्राइजल सिस्टम ये आपका नहीं है, परफॉर्मेंस अप्राइजल सिस्टम को नहीं है। ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस ऑन द बेसिस ऑफ फीडबैक ये आपका नहीं है। ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस ऑन द बेसिस ऑफ द फीडबैक ये आपका नहीं है। तो ये आपको दी आर द ऑर्गेनाइजेशन कांस्टेंट फॉर द इवोल्यूशन। क्लियर ट्रेनिंग पॉलिसी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अनविलिंगनेस टू मैनेजमेंट है टू चेंज ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी, है ना। परफॉर्मेंस अप्राइजल सिस्टम नहीं है, ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस ऑन दिस फीडबैक नहीं है। ये सारे आपको कांस्टेंट्स हैं। एंड द मेथड्स ऑफ द इवोल्यूशन, सेवरल मेथड्स आर एम्प्लॉयड टू कलेक्ट द डाटा ऑफ द आउटकम ऑफ द ट्रेनिंग। जो ट्रेनिंग का आउटकम है सक्सेसफुल हुआ नहीं हुआ, तो ओपिनियन एंड जजमेंट ऑफ द ट्रेनर्स, सुपीरियर्स एंड पियर्स। आप ओपिनियन लीजिए, जजमेंट लीजिए ट्रेनर का, सुपीरियर का और पियर का। ओपिनियन लीजिए एंड जजमेंट लीजिए ट्रेनर का, सुपीरियर का एंड पियर का। उससे आपको पता चल जाएगा कि इफ द ट्रेनिंग इज सक्सेसफुल और नॉट। आस्क द ट्रेनी टू फिल अप द इवोल्यूशन फॉर्म। ट्रेनी इवोल्यूशन फॉर्म रखिए, ट्रेनी इवोल्यूशन फॉर्म से आपको क्लियर होगा कि वो आपको ट्रेनिंग मिला कि नहीं मिला। यूजिंग ए क्वेश्चनियर टू नो द रिएक्शंस ऑफ ट्रेनी, यूजिंग ए क्वेश्चनियर टू नो द रिएक्शंस ऑफ द ट्रेनी। क्वेश्चनियर आप प्रिपेयर करके रखिए, उसमें रिएक्शन ऑफ ट्रेनीज को जानिए, वो आपको वो हुआ नहीं हुआ। गिव ओरल एंड रिटन टेस्ट टू ट्रेनी, ओरल एंड रिटन टेस्ट टू ट्रेनी दीजिए, असर्टेन हाउ फार दे हैव लर्नड। ओरल टेस्ट लीजिए, रिटन टेस्ट लीजिए ट्रेनी का कि कितना वो लर्न किया। अरेंज ए स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू विद द ट्रेनी, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, mock interviews with the trainee. This will help in the method of evaluation. Comparing training performance on the job before and after the training. Training performance is the best method on the job before and after the training. Before or after the training ये आपको बताएगा। Studying profiles and career development charts of the trainee. Career development charts of the trainee ये आपको क्लियर करेगा। प्रोफाइल्स ऑफ द ट्रेनिंग वो आपको क्लियर करेगा। मेजरिंग लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी लेवल आपको चेंज हुआ कि नहीं हुआ। वेस्टेज का क्या हो रहा है, वेस्टेज में रिडक्शन आया नहीं आया, कॉस्ट में कम हुआ नहीं हुआ, अपसेंटेज में कम हुआ ही नहीं हुआ, एम्प्लॉय टर्नओवर आफ्टर ट्रेनिंग ये कम हुआ ही नहीं हुआ। तो ये सारे चीजों से आपको ट्रेनिंग का इफेक्टिवनेस पता चल जाता है। दी आर द मेथड्स। ट्रेनी कमेंट्स एंड रिएक्शन ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड। ट्रेनी का कमेंट क्या है और रिएक्शन क्या है ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड। ट्रेनिंग पीरियड में आपका उसका क्या कमेंट है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये उसका निकालिए, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, है ना। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम ये आपको निकालिए, है ना। तो ये आप फीडबैक लीजिए। आफ्टर द इवोल्यूशन the situation should be analyzed to identify the possible causes or differences between expected outcome and the actual outcome. जो expected outcome है और
एक्चुअल आउटकम है उसका जो है आप जो है आप फीडबैक लीजिए. नेसेसरी प्रिकॉशन शुड बी टेकन इन डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द फ्यूचर ट्रेनिंग प्रोग्राम सो एज टू अवॉइड these causes. The outcomes of the training program should justify the time, money, and efforts invested by the organization in the training program. Information collected during the evaluation should be provided to the trainee. All the trainers as well as the others concerned with the designing and implementation of the training program. तो ये आपको करना आपको जरूरी है. तो ये फीडबैक जो है, ये मेथड्स ऑफ इवोल्यूशन आपको हो गया, ये आपको क्राइटेरिया ऑफ द इवोल्यूशन हो गया. कैसे आप जो है क्राइटेरिया से आप जो है चेंज करेंगे इवोल्यूशन क्राइटेरिया ट्रेनिंग का, ये आपको ट्रेनिंग का इवोल्यूशन क्राइटेरिया आपको दिया हुआ है. हाउ द इफेक्टिवनेस कैन बी जज, ये आपको दिया हुआ है. 4 आपको दिया हुआ है, 4 लेवल का दिया हुआ है. 4 लेवल का आपको 4 लेवल से ट्रेनिंग इवोल्यूशन आपको दिया हुआ है, कैसे करना है, मेथड इवोल्यूशन कैसे करना है, फीडबैक निकालना है, एंड द प्रिंसिपल ऑफ द ट्रेनिंग. The following guidelines help to make training more effective, more clearly and effective. Clear objective must to be there. कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है उसका गोल क्लियर होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए, मिशन उसका क्लियर होना चाहिए कि क्या जो है मिशन है, ऑब्जेक्टिव है, गोल है, ये सारा जो है आपको क्लियर होना चाहिए. The objective and scope of a training program should be clearly defined, है ना. ये आपको क्लियर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए. A comparison of the operational requirement and existing human resource skill will help to determine the specific training needs to the employee. Operational requirements depend on the performance need to achieve organizational objective. A well-defined set of the performance standards should be created. ये आपको होगा. ट्रेनिंग पॉलिसी आपको किस तरह, क्या ट्रेनिंग पॉलिसी है क्लियर. हाँ बताइए. अटेंडेंस हो गया क्या? हाँ शुभम जी का हो गया 143. हाँ 143 का हो गया. ठीक है सर, ठीक है. जो ट्रेनिंग पॉलिसी है वो क्लियर है कि नहीं है. फॉर द डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम such a policy should specify who is responsible for training, what is to be spent in the training. ट्रेनिंग पॉलिसी आपको, जो कंपनी की ट्रेनिंग पॉलिसी है वो आपको क्लियर है कि नहीं है. what to be spent in the training, ये आपको जरूरी है. motivation, employees tend to be most responsive to training programs why they feel to need them. Therefore training must be related to the needs and problems of the training as well as to their ability and aptitude. Information provided in the training material should be meaningful, है ना. It should be presented in a sequential manner from the simple to the more complex. Motivation आपको हुआ कि नहीं हुआ. Audio visual aids आपको मिला नहीं मिला to avoid the burden and fatigue of the lecture method, ये आपको हुआ कि नहीं हुआ. ये आपको मोटिवेशन आपको हुआ कि नहीं हुआ. दूसरा reinforcement, है ना. behavior modification model. When a behavior is repeatedly rewarded, it becomes a permanent part of one's personality. Behavior जो है आपको change हुआ कि नहीं हुआ. Learning is more effective when there is a reinforcement in the form of rewards and punishment. जब आपको ट्रेनिंग करने के बाद किसी आदमी को रिवार्ड मिलता है तो वो reinforcement कराता है. Rewards और positive reinforcement are more effective in changing behavior, है ना. पनिशमेंट आर द नेगेटिव रेनफोर्समेंट. तो जब रिवार्ड मिलता है तो वो पॉजिटिव रेनफोर्समेंट है, वो हुआ कि नहीं हुआ. पनिशमेंट मिलता है तो नेगेटिव रेनफोर्समेंट में. पे राइज हुआ कि नहीं हुआ, प्रमोशन हुआ कि नहीं हुआ. प्राइज शुड बी देयर, शुड बी यूज्ड टू रिवार्ड ट्रेनी हु लर्न एंड अप्लाई द नॉलेज एंड स्किल्स. रिवार्ड शुड बी क्विकली फॉलो द डिजायर्ड बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस. ट्रेनिंग शुड बी encouraged to participate, discuss and discover the desirable patterns of behavior, है ना. participate, discuss and discover the desirable patterns of the behavior. ये जो है इसके लिए आपको जरूरी है. ऑर्गेनाइज मटेरियल है कि नहीं है. जो ट्रेनिंग मटेरियल है वो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड है कि नहीं है. ए कंप्लीट आउटलाइन ऑफ द होल कोर्स वो क्लियरली है कि नहीं है.
प्रिपेयर देमसेल्फ बिफोर कमिंग द क्लास, ये आपको है कि नहीं है? ट्रेनिंग मटेरियल आपको सेक्शंस में आपका बटा हुआ है कि नहीं हुआ है? कंसल्टेशन विद सुपरवाइजर्स है कि नहीं? ऑर्गेनाइज्ड मटेरियल बहुत जरूरी है किसी भी ट्रेनिंग प्रोग्राम का। अगर ऑर्गेनाइज्ड मटेरियल रहा तो ट्रेनिंग को काफी जो है फायदा हो जाता है, ट्रेनिंग काफी आपको फायदा हो जाता है। लर्निंग पीरियड, लर्निंग टेक्स टाइम, टीचिंग इन सेगमेंट्स इज बेटर देन इन वन गो। सेवरल शॉर्ट सेशन ओवर ए लॉन्ग पीरियड इनेबल द ट्रेनिंग टू लर्न, है ना? तो लर्निंग सेशन आपका शॉर्ट सेशन जो है स्प्रेड कर दीजिए, तो आपको जो है उसमें आपको लर्निंग पीरियड आपको ठीक रहेगा। प्रिपेयरिंग द इंस्ट्रक्टर, जो इंस्ट्रक्टर है और ट्रेनर है इज द की फिगर इन द ट्रेनिंग प्रोग्राम। द ट्रेनर शुड नॉट बी ओनली बी गुड टीचर बट मस्ट नो द सब्जेक्ट एंड द जॉब ऑल्सो। गुड ट्रेनर शुड बी डेवलप्ड बट बोथ फ्रॉम द इनसाइड एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। तो प्रिपेयरिंग द इंस्ट्रक्टर, ये आपको जरूरी है। इंस्ट्रक्टर को आप रेडी कराइए, इंस्ट्रक्टर को ट्रेनिंग दिलवाइए, है ना? ये जो है आपको जॉब को वो जानता हो, गुड ट्रेनर्स, वो आपको जरूरी है। फीडबैक आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? ट्रेनिंग शुड बी प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन हाउ मच दे हैव लर्नड एंड हाउ विल दे आर डूइंग। एवरी ट्रेनी शुड नो व्हाट एस्पेक्ट ऑफ हिज बिहेवियर इज देयर। फीडबैक से पता चल जाता है, परफॉर्मेंस से आपको पता चल जाता है कि उसमें इंप्रूवमेंट हुआ कि नहीं हुआ, बिहेवियर में इंप्रूवमेंट हुआ कि नहीं हुआ, है ना? फीडबैक आपका पॉजिटिव आ रहा है नहीं आ रहा, फास्ट आ रहा है नहीं आ रहा, सेल्फ ग्रेडेड टेस्ट उसमें हुआ कि नहीं हुआ, प्रोग्राम लर्निंग आपका हुआ कि नहीं हुआ, तो फीडबैक से आपको क्लियर हो जाता है ना? प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस किसी चीज का एक आदमी करता है तो वो उसको वो परफेक्ट बनाता है। स्किल्स दैट आर प्रैक्टिस्ड often are better learned and less easily forgotten। प्रैक्टिस करने से वो जो है आदमी जो है वो आपको क्लियर हो जाता है। वो तो प्रैक्टिस हमेशा जो है आदमी को करते रहना चाहिए, तो जो कि आदमी को परफेक्ट बनाता है। ट्रेनिंग शुड बी अलाउड कंटिन्यूअस प्रैक्टिस, कंटिन्यूअस उसको प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। टेल एंड डेमोंस्ट्रेट नॉलेज एंड स्किल्स एंड देन लेट द ट्रेनी ट्राई it himself, है ना? Appropriate techniques, the method and process of training should be related directly to the needs and objective of the organization। ऑर्गेनाइजेशन का नीड्स क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, उसी के अनुसार मेथड को डिसाइड करना पड़ता है कि क्या मेथड लगाएंगे, क्या प्रोसेस लगाना है ट्रेनिंग का। पहले ऑर्गेनाइजेशन का नीड्स को समझिए, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव को समझिए, उसके बाद मेथड लगाइए, प्रोसेस लगाइए। It should be conducted as far as possible in the actual job environment so as to be meaningful, to be effective। Training should be based on the tested principles of learning। तो ये आपको 10 जो है आपके ट्रेनिंग प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल्स ऑफ द ट्रेनिंग गाइडलाइंस, जिससे कि आपको ये जो है आपको क्लियर होगा ट्रेनिंग गाइडलाइंस, है ना? देन रीट्रेनिंग, रीट्रेनिंग क्या है? Providing training the persons who underwent training earlier in the job। रीट्रेनिंग प्रोग्राम उसके लिए किया जाता है जो पहले लॉन्ग बिन पहले सर्विस में किया हुआ था, उसके बाद फिर उसको जरूरत है ना? तो तभी आपको रीट्रेनिंग करते हैं। रीट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड ऑन अकाउंट ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। सम एम्प्लॉय कॉन्सेंट्रेट ऑन ए नैरो टास्क एंड लैक अराउंड knowledge and skills। Training is required to widen their knowledge and attitude। Employees who are called back to work after layoff are given training so as to handle highly skilled jobs। अगर दोबारा किसी को काम पे बुलाया जाता है तो उसको ट्रेनिंग देने की जरूरत है। ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल चेंज हो गया है, तो एम्प्लॉय को जो है रिट्रेन करना जरूरी है ना? तो वर्सेटाइल वर्कफोर्स को डेवलप करना, कैपेबल करना, ये आपको जरूरी है ना? नॉलेज एंड स्किल्स का एम्प्लॉय को ऑब्सोलीट अगर हो गया है, रिपीट चेंज इन द टेक्नोलॉजी हो गया है, तो उसके लिए आपको ट्रेनिंग देना जरूरी है। ऑटोमेशन हो गया है तो इसके लिए ट्रेनिंग देना जरूरी है। कंप्यूटराइजेशन हो गया, उसके लिए ट्रेनिंग देना जरूरी है। न्यू स्किल्स बिकम नेसेसरी, न्यू स्किल्स आ गया है तो उसको ट्रेनिंग देना जरूरी है। तो इसको बोलते हैं कि एम्प्लॉय को रिट्रेनिंग दिया जाए। ड्यू टू द चेंजेस इन द डिमांड
on goods and services, some new jobs are created. नया जॉब जो है क्रिएट हो जाता है अगर चेंज इन द डिमांड ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इज देयर, तो आप उसके नया जो है उसका जॉब आपको डेवलप हो जाता है. Retraining may required at all levels, but it's some common for rank and file workers. This is so because technological change make an immediate impact on this, है ना. तो these are the retraining process. ये six कारण आपको दिए हुए, 6 रीजन्स आपको दिए हुए क्यों जो है रिट्रेनिंग जो है वर्कर्स का वो आपको जरूरी है. रिट्रेनिंग ऑफ द वर्कर इज एसेंशियल, है ना. Training process outsourcing. When organization gets its employee trained by an outside agency, it is called training process outsourcing. जब outside agency उसको ट्रेनिंग देती है तो इसको बोलते हैं outside outsourcing. Employee training is a recurring, tedious and time consuming process. Employee को ट्रेनिंग देना ये आपको tedious काम है, time consuming process है. Hence the many firms prefer training process outsourcing to in-house training, है ना. इसीलिए बहुत सारा जो है कंपनियां जो है आउटसोर्स कर लेती है. There are the many reasons and benefits for that. It allows management to focus on the building core business. Core business में आपको मैनेजमेंट ध्यान दे सकता है. More time and effort can be devoted to developing HR strategy and policy. आपको more time and effort can be devoted to developing HR strategy and policy. HR strategy and policy में आपको ज़्यादा टाइम दे सकता है. It helps to save cost. ये cost को सेव करेगा. The company gets the benefit of the expertise of the outsourcing agency. Expertise of the outsourcing agency. Expertise of the outsourcing agency को gain कर सकता है. The firm need not invest in the training infrastructure. Training infrastructure के लिए फर्म जो है इन्वेस्ट नहीं करता है. तो दिस इज द रीजन व्हाई द ट्रेनिंग आउटसोर्सिंग इज डन, है ना. तो ये आपका ट्रेनिंग का प्रोग्राम का ट्रेनिंग रिलेटेड जो भी था टॉपिक वो आपको खत्म हो गया है. कल से कैपेसिटी बिल्डिंग, कैरियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, पोटेंशियल अराइजल एंड सक्सेसफुल प्लानिंग उसका टॉपिक चलेगा. मैं आपको अटेंडेंस बता देता हूँ कौन कौन अभी है. दीपक जी 110, गुरदीप रावत जी 114, कुंदन कुमार जी 163, निखिल जी 122, पवन जी 127. ये 5 पार्टिसिपेंट अभी हैं. पवन जी 127, निखिल जी 122, कुंदन जी 163, गुरदीप रावत जी 114, दीपक जी 110. ये 5 पार्टिसिपेंट आपके हैं अभी, है ना. तो पांचों का अटेंडेंस जो है अभी फिर से दोबारा जो है चेक कर दिया गया, उसको लगा दिए. तो ट्रेनिंग इफेक्टिव है कि नहीं, इसकी ये 4 इवोल्यूशन क्राइटेरिया हैं. 4 इवोल्यूशन क्राइटेरिया है. इफेक्टिवनेस को जानना जरूरी है कि ट्रेनिंग आपको इफेक्टिव हुआ कि नहीं हुआ. रिएक्शंस, लर्निंग, बिहेवियर, रिजल्ट्स, ये 4 आपके इफेक्टिव क्राइटेरिया हैं. लेवल 1 में इवोल्यूट रिएक्शंस है. डिड द ट्रेनिंग लाइक द प्रोग्राम, द ट्रेनर्स, द फैसिलिटी? डिड दे थिंक द कोर्स वाज यूजफुल? व्हाट improvements can they suggest? For this, what you have to do, you have to prepare the questionnaire, distribute the questionnaire and analyze the questionnaire. ये आपको करना है ना. Evaluate the reactions कि what is the reaction of the trainee. तो ये आपको करना है. आपको दूसरा, evaluate the training, evaluate learning. To what extent do trainee have greater knowledge or skill after the training program than they did before, है ना. उसमें आप रिटन टेस्ट, परफॉर्मेंस टेस्ट एंड ग्रेडेड सिमुलेशन वो आप उसको कीजिए.
लर्निंग, है ना, to what extent do trainee have greater knowledge or skill after the training program than they did before. उसका रिटर्न टेस्ट, परफॉर्मेंस टेस्ट एंड ग्रेडेड सिमुलेशन ये कीजिए. Evaluate the behavior. All training behaving differently on the job after training. Are they are using skill and knowledge they learned in the training. बिहेवियर से पता चल जाता है, बिहेवियर ट्रेनिंग के देने के बाद और ट्रेनिंग के देने के पहले क्या जॉब में बिहेवियर में चेंज हुआ कि नहीं हुआ. तो वो सुपीरियर से पता चल जाता है, पीयर से पता चल जाता है, क्लाइंट से पता चल जाता है, सबऑर्डिनेट से पता चल जाता है ना. सुपीरियर से पता चल जाता है, पीयर से पता चल जाता है, क्लाइंट से पता चल जाता है, सबऑर्डिनेट से पता चल जाता है. तो क्या जो है उसका ट्रेनिंग बिहेवियर में चेंज हुआ नहीं हुआ, तो ये उससे जो है आपको पता चल जाता है. तो दिस इज द सुपीरियर से आपको उसका पता चल जाता है कि उसका बिहेवियर चेंज हुआ कि नहीं ट्रेनिंग के बाद में. दूसरा रिजल्ट्स जो है परफॉर्मेंस मेजर करके ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग का क्या रिजल्ट हुआ, एक्सीडेंट कम हुआ नहीं हुआ, क्वालिटी में कमी आपको इम्प्रूवमेंट हुआ नहीं हुआ, प्रोडक्टिविटी में इम्प्रूवमेंट हुआ नहीं हुआ, टर्नओवर में इम्प्रूवमेंट हुआ ही नहीं हुआ, मोरल में इम्प्रूवमेंट हुआ नहीं हुआ, कॉस्ट में रिडक्शन हुआ ही नहीं हुआ, प्रॉफिट में इम्प्रूवमेंट हुआ नहीं हुआ. इससे जो मेजर करके जो है आपको जो है वो आपको पता चल जाता है कि क्या जो है उसका जो है इफेक्ट जो है आपको जो है. तो ये आपको 4 लेवल्स ऑफ द ट्रेनिंग है, ये क्राइटेरिया है, उससे आपको पता चल जाता है. मेथड ऑफ इवैल्यूएशन है, ओपिनियन जजमेंट ऑफ द ट्रेनिंग है, सुपीरियर है, पियर्स है, asking the trainees to fill up the evaluation forms, है ना, questionnaire to know the reaction of the trainee, oral and written test of the trainee, arranging structured interview of the trainee, comparing training performance on the job before and after training, studying profiles, career development charts of the trainee, measuring level of productivity, wastage, cost, absenteeism, employee turnover after the trainee, measuring levels of productivity, है ना, वेस्टेज में कमी आया नहीं आया, वेस्टेज में आपको कमी आया नहीं आया, कॉस्ट में क्या आपको चेंजेज आया, एब्सेंटीज में क्या चेंजेज आया, एम्प्लॉय टर्नओवर में क्या चेंजेज आया, उसके बारे में दीजिए. ट्रेनिंग कमेंट्स एंड रिएक्शन ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड, क्या हो रहा है इसके बारे में दीजिए. कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या है उसके बारे में आप दीजिए. तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हुआ कि नहीं हुआ उसके बारे में दीजिए. तो ये आपको 10 जो है मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन है, उससे आपको पता चल जाएगा कि ट्रेनिंग आपका सक्सेसफुल हुआ कि नहीं हुआ, इससे आपको पता चल जाएगा. दूसरा, प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग क्या क्या होना चाहिए. ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए, क्लियर ऑब्जेक्टिव मस्ट बी देयर. ट्रेनिंग पॉलिसी, एक बेटर ट्रेनिंग पॉलिसी मस्ट बी देयर. ट्रेनिंग पॉलिसी होना चाहिए आपको. मोटिवेशन आपको होना चाहिए, मोटिवेशन आपको होना चाहिए, मोटिवेट वो कर रहा है नहीं कर रहा. रीइंफोर्समेंट है कि नहीं है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है कि नहीं है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है कि नहीं है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है कि नहीं है. ऑर्गेनाइज मटेरियल ट्रेनिंग का है कि नहीं है, ऑर्गेनाइज मटेरियल ट्रेनिंग का है कि नहीं है. लर्निंग पीरियड्स आपको उसको शॉर्ट कीजिए, लर्निंग पीरियड्स को उसको शॉर्ट कीजिए. प्रिपेयरिंग द इंस्ट्रक्टर को प्रिपेयर करना जरूरी है. इंस्ट्रक्टर को बेटर बनाना, इंस्ट्रक्टर को ट्रेनिंग दिलवाना उसको जरूरी है. तो दूसरा, फीडबैक लेना, वो इंफॉर्मेशन दे, फीडबैक दे, इसी से उसका क्लियर होता है कि बिहेवियर परफॉर्मेंस उसका चेंज हुआ कि नहीं हुआ, सेल्फ ग्रेडेड टेस्ट हुआ कि नहीं हुआ, इससे पता चल जाता है. प्रैक्टिस वो बराबर करे ऑफ द ट्रेनिंग. The practice makes man perfect. Skills are practiced often, better learned and less easily forgotten. तो प्रैक्टिस उसको आपको परफॉर्म करने में आपको हेल्प करेगा. एप्रोप्रिएट टेक्निक है कि नहीं है. द मेथड्स एंड प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग शुड बी रिलेटेड डायरेक्टली एंड नीड्स ऑब्जेक्टिव, ये आपको होना चाहिए. रीट्रेनिंग आदमी को दिया जाता है, तो दीज आर द काउजेज ऑफ द रीट्रेनिंग. अगर नेरो टास्क, लैक ऑल अराउंड नॉलेज है तो उसको आप रीट्रेनिंग उसको दिलाइए.
to their knowledge and attitude, है ना. वर्क आफ्टर ले ऑफ, अगर ले ऑफ हो गया है फिर से दोबारा ज्वाइन किया है तो उसको रीट्रेनिंग दिलाइए, है ना. टेक्नोलॉजिकल चेंज हो गया है तो उसको रीट्रेनिंग आप दिलाइए. Retraining is necessary to develop a versatile workforce capable of performing more than one job. ये आपको जरूरी है. Retraining becomes necessary when knowledge and skills employee becomes opposite due to the rapid changes in the technology. Rapid changes in the